અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં એક એવી ઘટના સામે આવી જેણે માત્ર શહેરને જ નહીં પણ આખા રાજ્યને અત્યારે હચમચાવી દીધું છે. અને આ જ મામલાને લઈ હવે સવાલો એ ઉઠી રહ્યા છે કે આ માત્ર ફૂડ પોઈઝનિંગથી મોત થયું છે કે પછી આમાં હત્યાનો કોઈ રોલ છે. શું છે સમગ્ર મામલો, તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરીશું. નમસ્કાર, હું છું પ્રથમ મોદી, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ. અમદાવાદના ચાંદખેડાની મારુતિ પ્લાઝા સોસાયટીમાં રહેતા વિમલ પ્રજાપતિએ 6 એપ્રિલના રોજ એક સ્થાનિક ડેરીમાંથી ઢોસાનું ખીરું લાવ્યા હતા. પરંતુ ઢોસાનું ખીરું ખાધા પછી જ ગણતરીના જ કલાકોમાં પરિવાર વેરવિખેર થઈ ગયો. ફૂડ પોઈઝનિંગ એટલું ગંભીર હતું કે બંને બાળકીઓએ દમ તોડી દીધો અને પિતા વિમલભાઈ અને માતા અત્યારે હોસ્પિટલની અંદર આઈસીયુમાં દાખલ છે. તેમણે તો કદાચ ખબર પણ નથી કે તેમની દીકરીઓ હવે આ દુનિયામાં નથી. પણ હવે આ કેસમાં વળાંક એ આવ્યો કે 7 એપ્રિલે એટલે કે ગઈકાલે 2.5 મહિનાની જે દીકરી હતી તેને તો દફનાવી દેવામાં આવી હતી. પરંતુ શંકાની સોએ જ્યારે અત્યારે ચાંદખેડા પોલીસ અને એફએસએલની ટીમની હાજરીમાં બાળકીના મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ પેનલે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવાનો નિર્ણય લીધો અને શા માટે, સવાલ અહીંયા એ ઊભો થાય. કારણ કે પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં તો ઝેરના પુરાવા નથી મળ્યા અને જો ખીરું ખરાબ હોત તો ઝેર ક્યાં ગયું, સવાલ એ અહીંયા ઊભો થાય છે. હવે અહીંથી પોલીસની તપાસમાં બે ફાટામાં જે છે વેચાઈ જાય છે. એક તરફ ફૂડ પોઈઝનિંગને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને બીજી તરફ સામૂહિક આપઘાતનો ગંભીર એંગલ જે છે પોલીસ અત્યારે મામલે તપાસ કરી રહી છે. ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ અત્યારે એફએસએલ રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહ્યા છે અને માતા પિતાના બ્લડ સેમ્પલ્સ પણ આ મામલે લેવામાં આવ્યા છે. ડેરીમાંથી ખીરાના નમૂના જપ્ત કરાયા પણ સત્ય હજુ પણ જે છે અંધારામાં છે. કેમ કે કેસમાં સૌથી મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે ઘનશ્યામ ડેરીના સંચાલકે પોતાનો પક્ષ રાખ્યો. કેમ કે સંચાલકનું કહેવું છે કે તે દિવસે કુલ તેમણે 125 કિલો ખીરું જે છે વેચ્યું હતું. અને વિચાર કરો, 125 કિલો ખીરું એટલે કે અંદાજે 50 થી 60 પરિવારોએ ખીરું ખાધું હશે. જો ખીરામાં જ ખરેખર ઝેર હોત, કોઈ ખામી હોત તો બીજા કોઈની તબિયત પણ બગડત. શા માટે માત્ર આ પરિવારનો જ ભોગ લેવાયો? હવે આ તર્ક બાદ પોલીસ હવે આપઘાતના એંગલથી પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું વિમલભાઈ કોઈ આર્થિક તણાવમાં હતા કે પોલીસ હવે વિમલભાઈના કોલ ડિટેલ્સ, સીસીટીવી ફૂટેજ, બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન અને ઓફિસના મિત્રોની પૂછપરછ પણ આ મામલે અત્યારે કરી રહી છે. સૌપ્રથમ સાંભળી લઈએ કે પોલીસનું આ વિષયમાં શું કહેવું છે. जो इंसिडेंट्स की बात हो रही है वो इंसिडेंट्स में ऐसा है कि 5 तारीख को केडी हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को एक वर्दी मिली थी जिसमें मिस्ट्री डॉटर ऑफ विमल भाई प्रजापति जो 3 साल की बच्ची थी, वो उसको ब्रॉड डेड हालत में हॉस्पिटल लाया गया था. उसका केस स्टडी में ऐसा था कि उसके फादर की तरफ से ऐसा बताया गया था कि पास में चांदखेड़ा पास में आई हुई कोई दुकान से उन्होंने डोसा का खीरू लिया और वो खीरू खाने के बाद प्रथम जो जाहिरात देना रहे विपुल भाई गौरीशंकर प्रजापति, उनकी तबीयत खराब हुई. दूसरे दिन उसी खीरू में से जो डोसा उसकी वाइफ और ये मरणजनार मिस्त्री ने डोसा खाया था, उनको भी वॉमिटिंग की कंप्लेन थी. और वॉमिटिंग के बाद लड़की की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उसको केडी हॉस्पिटल में पहले एडमिट किया गया था. वहाँ से फिर उनकी एक जो छोटी डॉटर है राहा करके, उसकी भी डेथ हो गई थी. तो उसकी डेथ सेरेमनी के हिसाब से पूरा फैमिली ने केडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर पे आया. दूसरे दिन 5 तारीख को सुबह में उसकी तबीयत बच्ची की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. उसके बाद उसको इमीडिएटली केडी हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले उसकी डेथ हो गई थी. तो उस डेथ के हिसाब से आगे तपास चल रही है. जो एडी दाखिल हुई है चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में, उसमें जहाँ से वो खीरू लिया है उसका सैंपल भी कलेक्ट किया गया है. और इसके अलावा उस जगह से और किन लोगों ने उस दिन खीरू परचेज किया है उस दिशा में भी तपास चालू है. और जो मरनार है और मिस्ट्री उसके फादर का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में, उसकी फैमिली डिटेल्स के बारे में भी तपास हाल चाल. क्या वजह लग रही है, क्या उनकी वजह यही डोसा लग रही है उसी के खाने से हुई या पुलिस किसी और भी यहीं पर नहीं, अब पुलिस सभी एंगल्स पे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है. पहले जो उनकी तरफ से जो जाहिरात करना विपुल भाई है, जिनकी जो कंप्लेन है कि मैंने यहाँ से खीरू लिया उसके बाद इश्यू हुआ है, तो उसी मतलब जो लाइन है उसके ऊपर पुलिस की तरफ से अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. उसका एफएसएल टेस्ट भी करवाया है, सारे फूड के सैंपल भी कलेक्ट किए होंगे. एएमसी को भी हमने रिक्वेस्ट किया था फूड सैंपल कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने भी सैंपल कलेक्ट किया है. जो लड़की एक्सपायर्ड हो गई उसका विसरा रिपोर्ट और स्टूल्स और रिपोर्ट्स भी मतलब सैंपल लिया, वो रिपोर्ट्स भी आएंगे.
उसके बाद ही आगे बताया जा सकता है कि उसमें क्या था। दूसरे एंगल से उसकी घर की परिस्थिति के हिसाब से भी तपास चल रही है कि उनमें परिवार में कुछ कोई इश्यू था या क्या था, उस दिशा में भी अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। हीरो लेकर आए थे, वो क्या कामकाज करते थे और क्या कोई पारिवारिक हाँ, ये विमल भाई जो LIC एजेंट है, फैमिली में उसके मदर फादर के साथ में और अपनी 2 बच्ची के साथ में रहते हैं। उनकी वाइफ का नाम भावना बेन है और फैमिली के साथ में ही रहते हैं। और उनकी बाकी बहनें और जो बाकी भाई है वो अलग अलग जगह पे उनको शादी के बाद या एक हॉस्टल में रहता है। उनका फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा अ, अभी तक कुछ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर भी उस दिशा में भी तपास चालू है। 2.5-3 महीने की जो बच्ची मृत हुई थी, उसका भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली तारीख को जब ये खीरू खाया विमल भाई ने, उसके बाद उसकी वाइफ ने भी ये खीरू में से डोसा बना के खाया था। दूसरे दिन 3 तारीख को उसकी छोटी बच्ची जो 2.5 मास के आसपास की थी, उसकी तबीयत सडनली खराब होने के बाद उसको पहले पुष्पा हॉस्पिटल और फिर उसके बाद एप्पल हॉस्पिटल मिशन ले गए थे, लेकिन वहाँ भी हॉस्पिटल ने उसको ब्रॉड डेथ जाहिर किया था। तो उस वक्त उन्होंने पुलिस को कोई इंटीमेशन नहीं दिया था। उनका ऐसा मानना था कि उनको ऐसा लगा कि ये नेचुरल डेथ है, वॉमिटिंग के कारण कुछ है। और उसके बाद जब ये सारा प्रकरण उनको पता चला कि शायद ऐसा हो सकता है, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया। तो आज उसके परिवार की सहमति से एजुकेटेड मजिस्ट्रेट को साथ में रख के पंचनामा करके उसकी डेड बॉडी को फॉरेंसिक पीएम के लिए पूरे सम्मान के साथ बाहर निकाला गया है और उसको फॉरेंसिक पीएम के लिए भेजा गया है। सर, जिस दुकान से खीरू लिया गया था, वहाँ से और भी लोगों ने खीरू लिया था। हाँ, क्या वो उन लोगों ने दुकानदार का पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसका स्टेटमेंट भी लिया है, वहाँ से CCTV फुटेज भी कब्जे लिए, उसके ऊपर भी तपास चालू है। उनका कहना है कि पर डे उनके यहाँ से 7 से 70 kg के ऊपर खीरू वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, परचेस होता है अलग अलग लोगों से। उनमें से किसी की तरफ से वो कंप्लेंट उन तक अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस उस दिशा में भी तपास करे कि एक ही बंच से और किन किन लोगों को सैंपल में खीरू मिला है, तो उस हिसाब से उस दिशा में भी तपास એટલે સવાલ અહીંયા એવું તો શું બન્યું કે પિતા અથવા પરિવારે આવું આ જ પગલું ભરવું પડ્યું, અથવા તો શું ખરેખર ખીરામાં કોઈ એવી વસ્તુ ભળી હતી કે માત્ર પરિવારને જ ભોગ લેવાય? આ ઘટનાએ ઘણા ગંભીર સવાલો જે છે ઊભા કરી દીધા છે કે જો ફૂડ પોઈઝનિંગ છે તો 125 કિલો ખીરું છે અને બાકીના લોકો સુરક્ષિત કેમ છે? શું પરિવારના કોઈ સભ્ય જાણી જોઈને જે ઝેરી પદાર્થ ભેળવ્યો છે તે સવાલ અહીંયા ઊભો થાય છે. શા માટે 2.5 મહિનાની બાળકીનું પોસ્ટમોર્ટમ વગર જ તેને દફનાવી દેવામાં આવી? તે સવાલો જે અત્યારે કરવામાં આવી રહ્યા છે. હવે સૌની નજર જે FSLના રિપોર્ટ પર છે કે જે રિપોર્ટ ક્યારે આવશે ને એના પછી હવે સત્ય જે છે બહાર આવી શકે છે. આ વિષયમાં તમારો શું અભિપ્રાય છે અમને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.